Okay, class. So today we are going to understand what is menstrual cycle, okay, and how women body gets prepared for the birth, giving giving a birth to the baby in her life. Okay, basically the simple thing. Let's say the simplest thing. Now, menstruation. This is also known as period or monthly. Okay, the word we can use here is, I will use the different colors here so no one has a problem with that. This is also known as the period, or we call it monthly. That is why it means monthly. A phenomena which occurs every month. ऐसी फिनोमिना, वो प्रोसेस जो एवरी मंथ विमेंस के बॉडी में हो रहा होता है, वी कॉल इट मेंस्ट्रुएशन. एंड यहाँ पे क्या होता है? इट इज अ रेगुलर डिस्चार्ज. आई विल जस्ट राइट अ फ्यू पॉइंट्स एज वेल. इट इज अ रेगुलर डिस्चार्ज ऑफ ब्लड एंड म्यूकस टिश्यू. एक म्यूकस टिश्यू होता है जो मेंसेस आल्सो नोन एज म्यूकस टिश्यू होता है, जो यूट्रस में प्रेजेंट होता है, याद रखिएगा. ओके, from inner lining of the uterus through vagina. Again, it is a regular discharge of blood and mucus tissue from the from the inner lining of vagina. Okay, from the inner lining of vagina. Let me change the color. I will write that down here as well. Before I go and explain you this, I will write that down so you can have this. It is a regular, okay, it is regular discharge of, these are the basic points you can you all need to know. Blood and mucus. Okay, mucus, इसका स्पेलिंग अलग है और प्रोनाउंसिएशन अलग है, याद रखिएगा. म्यूकस टिश्यू, ओके, फ्रॉम inner lining. We understood the inner lining मतलब endometrium lining, right? Yeah, if you just remember that inner lining of the uterus through vagina. Okay, I hope that makes it clear. So it is a like process, monthly process. Okay, it is a monthly process, happens every month, and development and release of an egg takes place and breakdown and build up of uterine line. हम इसको बहुत डिटेल में समझेंगे, बट अभी के लिए समझते हैं. चलिए, so this happens through like every month from a girl child when she attains a puberty period. From her puberty period, जब वो puberty period पहला आता है उनका, where their reproduction system starts developing and they have their first menstrual cycle. So from there we count the first menstrual cycle from the day they starts bleeding. Okay, the first day of the bleeding is called the first day of the menstrual cycle. वहां से count करते हैं and till the age of their menopause. So the starting का जो first होता है उसको भी another term we know we can give as menarche. Okay, I'll use the different color. Another term we also give as menarche. वी कॉल दैट मेनार्की. उसको हम मेनार्की बोलते हैं. नहीं भी जाने की चलेगा, बट अभी के लिए अगर आपको किसी को इंटरेस्ट है ज्यादा जानने के लिए तो वो काफी अच्छा वर्ड, यू कैन नो दीज वर्ड्स एज वेल. ओके, सो फ्रॉम द एज ऑफ प्यूबर्टी पीरियड, वहां जैसे उनका प्यूबर्टी स्टार्ट टिल द दे ग्रो, जैसे वो ग्रो करते हैं, और टिल द एज दे बिकम वुमेन, लाइक दे बिकम ओल्डर, एंड टिल द एज ऑफ देयर मीनोपॉज. मतलब मीनोपॉज तक ये साइकिल चलता है एवरी मंथ. एंड दिस इज अ रिपीटेड साइकिल, okay, a repeated cycle, and that gets repeated on average 28 to 30 days. ये साइकिल रिपीट होता है 28 to 30 days में रिपीट होता है. एंड दैट इज वाई वी कॉल इट मेंस्ट्रुअल साइकिल. मेंसेस का मतलब एक और होता है, यहाँ पे याद रखिएगा. दिस इज एक और, आई विल एक्सप्लेन यू दिस, आई विल मेक इट मोर इंटरेस्टिंग फॉर एवरीवन. Menstruation, another word for this, menstruation, let me just write it here once. Okay, menstruation, this is related to, now you're gonna get it, you're gonna find it interesting, moon. This is related to moon.
Who can tell me how it can be related to moon? Who can tell me that? Yes, let's hear from someone. Who can tell me how this can be related to moon? How it can be related to moon? I'm waiting for responses in the chat box. Guys, please be very active in the chat box. I told you yesterday as well, we just had I also just had a class with the B group, and I love their responses. Okay, they try hard. Okay, they love, I really love their responses, the activeness in on the chat box on the group. I ask, does anyone know how it can be related to? Even if you don't know, you can say just no, right? Rather not responding. I think that would be better if you just say no, or if you say, if you have any idea how it can be related to moon. Okay, Ankit is saying no. Okay, perfect. It's fine. So moon, you all know the waxing and the waning thing, both unka banna, it takes like 28 to 30 days. It takes like 28 to 30 days, right? It takes, yes Akash, very good. Moon also take 29 days, 28 to 30 days. तो आप समझिए, पहले के टाइम पे, बहुत पहले, थोड़ा चलते हैं बहुत पहले, तो जब पहले people were not aware of the menstruation cycle, people were not aware of the menstruation cycle, they had the taboos, they had the false belief. So they, before the belief, false belief, I will tell you. So they consider as a moon, जैसे फुल मून आता है 28 डेज 38 डेज में रिपीट होता है फुल मून, तो दे रिलेटेड, अच्छा ये साइकिल भी 28-30 डेज में आ रहा है, सो दिस इज रिलेटेड टू द मून. This is how it is related to the moon, because this cycle also gets repeated in the 28 to 30 days. Okay, isn't it interesting, right? है ना इंटरेस्टिंग? समझिए, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. Now another meaning of menstruation is also called as menses. We also call it menses. याद रखिएगा, menses. ठीक है, कैसे समझिएगा? Because लैटिन में इसका मतलब होता है, लैटिन मीन्स, लैटिन, let me write it here. लैटिन मीन्स, इसका लैटिन में मीन्स होता है मंथ. इसका एक लैटिन मेंसिस मतलब होता है, मेंसिस होता है वो वर्ड. आई विल राइट इट हियर, मेंसिस. लैटिन में मेंसिस को बोलते हैं मंथ. मंथ, तो अगेन ये मंथ वाइज होता है, एवरी मंथ इट happens, right? So it is related to the, it is the another word we can use here is menses. The another word you can use here is menses, and it is related to the Greek meaning that is called, इसका ग्रीक में मतलब क्या होता है? In Greek you can write it in Greek. Okay, in Greek the mean, menses, जो menses है, mean जो होता है, मीनिंग होता है उसका, मीन होता है, क्या होता है वो? मून होता है, मतलब मून मतलब होता है. दैट इज व्हाई वी कॉल इट मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेंस्ट्रुएशन साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल. ओके, बिकॉज मेन, और वी कैन कॉल इट मेंसेस. है ना इंटरेस्टिंग? थोड़ा इजी लग रहा है सभी को? कुछ टफ हो, नहीं सुन में तो प्लीज आस्क मी, डोंट हेजिटेट. ओके, नाउ मेनार्की इज द बिगिनिंग ऑफ द साइकिल. याद रखिएगा, बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट साइकिल, द फर्स्ट पीरियड यूजुअली बिगन्स. ठीक है, नाउ when it starts, let's understand how when it starts. Okay, ये start कभी होता है? It starts from the puberty period, and that is generally the age of what? It starts at the age of wait, I'll use a different color. Yeah, it starts as the age of, as at the age of 11 to 13 years. Okay, जनरली लिया जाता है 12 to 14 भी लेते हैं, 12 to 15, बट 11 to 13 लाइक भी ले सकते हैं. ऐसा मतलब डिपेंड करता है. पहले बहुत लेट होता था, आजकल बहुत जल्दी होने लगा. वी हैव डिस्कस्ड बिकॉज ऑफ द न्यूट्रिएंट्स वी गेट, राइट? और कई बार ये बहुत जल्दी, ज्यादा से ज्यादा और भी जल्दी हो जाता है, 8 साल की उम्र में भी स्टार्ट होता है. इट ऑल्सो स्टार्ट एट 8 एज ऑफ 8. कई लोगों में बहुत जल्दी, और भी जल्दी स्टार्ट हो जाता है, राइट? सो दैट इज दैट. चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको और समझते हैं. अब इसको एक एक करके वी विल अंडरस्टैंड इन डिटेल, राइट? नाउ लेट्स गो अहेड. सो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कंट्रोल होता है, इट इज कंट्रोल्ड बाय 4 टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स released in the body, the women's body. Okay, 4 types of hormones which are released in the female's body.
those control the menstrual cycle. Okay, they all control the menstrual cycle. The names are here, but you can't see them because I have already written the something over it. So I will quickly rub it, I will show it in other way. So उनका नाम लिख लीजिए, जो हॉर्मोन्स है उनका नाम लिख लीजिए. मैं आपको पहले बता देता हूँ हॉर्मोन्स. द four hormones, these are the proteins. Okay, hormones control the menstrual cycle. याद रखिएगा, menstrual cycle को कंट्रोल करने वाले हॉर्मोन्स हैं जो, एंड दोज आर, पहला है FSH, फॉलिकल. नाम पहले लिख लीजिए, जस्ट राइट द नेम, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ध्यान नाम याद रखिएगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. Let me see if this is given in the textbook. I think it is given in the textbook. Yes, it is given in the textbook. The second is released as LH. इसका नाम है luteinizing hormone. Luteinizing hormone. This is given in the textbook. Okay, so you can also mark in the textbook as well. That is also fine. The third one is estrogen. They all have their significance. इनका सबका एक अपना अपना एक फंक्शन है. And the last is progesterone. अब हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे. अभी के लिए हम यहाँ पे ध्यान देते हैं. अब समझिए कैसे स्टार्ट होता है, प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है. आई विल टेल यू द प्रोसेस, हाउ द प्रोसेस स्टार्ट्स. समझिए. So every month this happens. Every month the process repeats. Every month. So every month क्या होता है कि आपका एग ओवम रिलीज होता है. एग ओवम रिलीज होता है और वो रिलीज होके कहाँ पे आता है, ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब में आता है. अगर वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है सो इट फॉर्म्स अ जाइगोट. अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है इट अगेन गेट्स वॉश आउट. तो कैसे होता है, ये फैलोपियन से ट्यूब से आते हुए कहाँ पे आता है, ये जो यहाँ पर यूट्रस में आके वॉश आउट होता है थ्रू द वजाइना. यहाँ पे ये जो आपकी एंडोमेट्रियम लाइन है, याद रखिएगा एंडोमेट्रियम लाइन, ये जो एंडोमेट्रियम लाइन होती है. नाउ एवरी मंथ जब ये स्टार्ट होता है, याद रखिएगा, एक ही ओवरी से एक ही टाइम पे आपका रिलीज होता है. एक ही ओवरी से एक ही टाइम पे आपका ओवम रिलीज होता है. अल्टरनेट चलता है. यू रिमेंबर दैट, अल्टरनेट, इट गोज ऑन अल्टरनेट. ओके, नाउ हाउ डज दैट हैपन. अब चलिए समझते हैं एक एक करके कैसे स्टार्ट होता है. जस्ट लेट मी हियर फ्रॉम ऑल ऑफ यू. आर वी गुड सो फार सो फोर्थ? यहां तक सही है सभी का? इजी है, समझ में आ रहा है? इज देयर एनी डाउट? अभी के लिए कोई डाउट है यहाँ पे सभी को? नो. ओके, गुड, लेट्स गो अहेड. अगर डाउट नहीं तो विल गो अहेड. चलिए अब समझिए. सो होता क्या है, विमेन्स के बॉडी में एवरी मंथ हाइपोथैलेमस सभी को पता है, राइट? ये हमारा सेरिबेलम के पास होता है, ब्रेन का एक हिस्सा है. ब्रेन में होता है, एक ग्लैंड होती है, राइट? एक ग्लैंड होता है. हाइपोथैलेमस से जुड़ा होता है पिट्यूटरी ग्लैंड. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड. हम इसे मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड. Okay, why do we call it master gland? Because it controls the hormones in the body. Endocrine control system. Okay, पहला होता है नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है इंडोसाइन हार्मोन केमिकल कंट्रोल सिस्टम. जो हमारी बॉडी दो तरीके से कंट्रोल होती है. एक तो नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, दूसरा हमारा जो हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं हमारी बॉडी को, राइट? सो पिट्यूटरी ग्लैंड, सो हाइपोथैलेमस गिव्स सिग्नल टू द पिट्यूटरी ग्लैंड. Hypothalamus gives signal to the pituitary gland, and pituitary gland releases two hormones. Pituitary gland releases two hormones. Which are those? Luteinizing hormone LH, and follicle stimulating hormone FSH. अभी हम समझेंगे इनका एक एक मीनिंग समझेंगे. डोंट वरी, वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ऑल ऑफ दीज. बट अभी के लिए याद रखिए, luteinizing hormone and follicle stimulating hormone, these two are released through the pituitary gland. इनको रिलीज करता है. Now FSH gives signal to the ovary को सिग्नल आता है FSH से कि अब टाइम हो गया है टू रिलीज द ओवम. ओके, तो ओवम डायरेक्टली रिलीज नहीं हो जाएगा. पहले क्या होगा, ओवरी विल रिलीज द एस्ट्रोजन. I will write it here, estrogen.
याद रखिएगा, एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करता है, ओवरी रिलीजेस द एस्ट्रोजन, ओवरी रिलीजेस द हार्मोन कॉल्ड एस्ट्रोजन। नाउ एस्ट्रोजन का काम क्या है, ये ओवम को रेडी होने के लिए बोलता है, मैच्योर होने के लिए बोलता है। सो आपको एक वर्ड मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूं, द न्यू वर्ड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू हियर, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, सो दिस इज हाउ इट इज डन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट इन ब्रीफ, थोड़ा और समझते हैं इसको, ठीक है। सो अगेन आई विल रिपीट, जो आपका हाइपोथैलेमस है, आई विल राइट इट परफेक्टली हियर वन बाय वन। हाइपोथैलेमस, पहले हम हाइपोथैलेमस के पास चलते हैं, ठीक है। हाइपोथैलेमस जो हमारे ब्रेन में होता है, ठीक है। इट गिव्स सिग्नल टू एंटीरियर पिट्यूटरी, आप सिर्फ पिट्यूटरी अभी के लिए याद रखिए, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देता है, जस्ट रिमेंबर सिग्नल, इट गिव्स द सिग्नल टू द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। नाउ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीजेस द FSH and LH hormones. It releases the FSH and LH hormones. Now FSH gives signal to the ovary, these two give signal to the ovary here to perform, to start the formation of egg, egg का formation start कर दीजिए, okay। Now ovary releases the estrogen, on this note ओवरी एस्ट्रोजन को रिलीज करता है, याद रखिएगा एस्ट्रोजन को रिलीज करता है, एंड दिस एस्ट्रोजन वेयर डज इट गो, ध्यान से देखिएगा, आप समझिएगा, एक मैं आपको नया वर्ड बताने वाले हैं यहाँ पे, ओके, द वेरी न्यू वर्ड यू गोना लिसन टू लिसन हियर, ओके, हियर, एंड दैट वर्ड इज follicle, okay, the follicle, okay, again I will write it here, follicle, follicle, ओके। फॉलिकुलर फेज आता है, यहाँ पे फॉलिकल्स बनते हैं, ठीक है, फॉलिकल्स बनते हैं। अब फॉलिकल्स हैं क्या, अब मैं आपको समझाता हूँ, एक सेकंड दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनते हैं, फॉलिकल्स बनेंगे, राइट, फॉलिकल्स, समझिएगा, इसको बोलते हैं ग्राफीन फॉलिकल। ये पूरा इस तरीके का होता है, इस तरीके का होता है, इस तरीके का, यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे क्या बनेंगे, यहाँ पे ऐसे समझिए, मैं आपको इसको और समझाएंगे डिटेल में, इस तरीके का होता है, राइट, इस तरीके का होगा, ऐसे समझिए, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, फॉलिकल ऐसा होता है। नाउ व्हाट इज फॉलिकल, आप थोड़ा समझते हैं, और एक इसको थोड़ा और समझ लेते हैं। समवन इज हैज अनम्यूटेड, ओके, परफेक्ट। सो फॉलिकल होता क्या है, दीज आर द सैक्स, आई विल, कैन आई राइट इट हियर, आई विल राइट इट हियर, वेट, आई विल यूज द डिफरेंट कलर सो यू डोंट गेट कंफ्यूज। These are sacs, ओके, सैक्स है, बोरे की तरह, एक थैले की तरह काम करते हैं, सैक्स इन ovaries, these are like sacs in ovaries, contains and they contains eggs, the eggs or you call them ovum, याद रखिएगा, दे कंटेन, जैसे हमारा ब्लास्टोसिस्ट पढ़ा था ना, ब्लास्टोसिस्ट वहां पे, सॉरी ब्लास्टोसिस्ट पढ़ा, तो वैसा ही समझ लीजिए, एक सैक है, एक थैला है, एक बैग है, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ बैग, जो ओवरीज में होता है, और दैट कंटेन्स एग और ओवम, दैट कंटेन्स एग और ओवम, एंड जैसे ही फॉलिकुलर फेज आता है पर्टिकुलर मंथ में, इट स्टार्ट्स बिगिन, और वहां पे इट गिव्स द सिग्नल टू प्रोड्यूस द ओवम, ओके, ये होता है फॉलिकल, यहाँ पे बनते हैं। अब आप आगे आते, वापस आते वहीं पे, तो यहाँ पे फॉलिकल ग्रेन्स बनते हैं, एंड दिस, जैसे ही फॉलिकल ग्रेन क्या होता है, इसका काम होता है रप्चर होना, रप्चर, ब्रेक होना, रप्चर या फिर ब्रेक होना, इट्स वर्क इज टू रप्चर और ब्रेक, और ब्रेक होके क्या रिलीज करेगा, एस्ट्रोजन क्या रिलीज करवाएगा इससे, एस्ट्रोजन विल हेल्प इन रिलीजिंग ओवम, एस्ट्रोजन इसको सिग्नल देगा टू रिलीज ओवम, ओके, ये सिंपल से देखिए, ना समझ में आए तो पूछेगा, ओवम और एग रिलीज होगा यहाँ से, इस फॉलिकल सैक से, इस फॉलिकल सैक से यहाँ पे पूरी फुली डेवलप्ड फॉलिकल सैक रहेगा, यहाँ पे याद रखिएगा, फुली डेवलप्ड, ओके, ग्राफीन फॉलिकल सैक जिसको बोलते हैं, ग्राफीन, फुली डेवलप्ड फॉलिकल सैक, जिससे यहाँ पे ओवम और एग रिलीज होगा, और ये जो ओवम और एग रिलीज हो गया, अब जो बचा ऐसे, लेट मी जस्ट ड्रॉ द डायग्राम फॉर दिस, अ सेपरेट डायग्राम फॉर दिस, सपोज कीजिए ये फॉलिकल सैक है आपका,
यहां से एक ओवम, एक ही ओवम रिलीज होगा एक बार में, याद रखिएगा। एन ओवम इज रिलीज, एन ओवम, याद रखिएगा, एन ओवम, एक ही ओवम रिलीज होता है यहां से। तो मान लीजिए आपका एक ओवम रिलीज हुआ, रिलीज हो गया, तो जो रिमेनिंग है, द रिमेनिंग, दिस रिमेनिंग रिलीजेस, इसका रिमेनिंग क्या बनता है, इस रिमेनिंग से बनता है कॉर्पस ल्यूटियम। ये जो बचा हुआ है कॉर्पस ल्यूटियम, रिमेनिंग, ओके, आई विल राइट इट हियर, रिमेनिंग, रिमेनिंग क्या बनता है, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम, मतलब एग अभी रिलीज हो चुका है, ठीक है, समझिएगा, एग हैज बीन रिलीज, ओवम रिलीज हो चुका है, ये ब्रेक हो गया, फॉलिकल आपका रैप्चर होके एग इसने रिलीज कर दिया, कॉर्पस ल्यूटियम बना। अब देखो, जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज होता है, समझिए जरा, कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज होता है यहां पे, दिस, ये रिलीज करता है आपका प्रोजेस्ट्रॉन, मैं आई विल यूज द डिफरेंट कलर, दिस रिलीजेस द प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन द फोर्थ हार्मोन, द फोर्थ हार्मोन, याद रखिएगा, ऐसे याद रखिए, और थोड़ा सा मॉडरेट लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, थोड़ा सा एस्ट्रोजन भी, कुछ क्वांटिटी में एस्ट्रोजन भी रिलीज करता है, दिस वाज द थर्ड हार्मोन, दिस वाज द फर्स्ट एंड द सेकेंड हार्मोन, याद रखिए, ऐसे याद रखिए, ठीक है, एस्ट्रोजन भी रिलीज करता है मॉडरेट लेवल पे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द यूज ऑफ फंक्शन ऑफ दीज टू। नाउ मैं आई विल राइट इट हियर, प्रोजेस्ट्रॉन हेल्प्स इन मेंटेनिंग, समझिएगा, मेंटेनिंग, मेंटेनिंग द endometrium, endo, I will write it clearly, endometrium lining, lining, इसी को हम बोलते हैं, we also call it uterine lining, यूटराइन लाइनिंग, वी ऑल्सो कॉल इट यूटराइन लाइनिंग, क्योंकि जब यहाँ पे जाइगोट बनेगा तो वहां पे उसको कुशनिंग प्रोवाइड करनी होती है, कुशनिंग, कुशनिंग के लिए, कुशनिंग, कुशनिंग, थोड़ा सा उसको एंडोमेट्रियम लाइनिंग में क्या मिले, उस जाइगोट को कुशनिंग हो, जो वहां पे वो एम्ब्रियो बनेगा तो उसको कुशन टाइप से मिले, इसीलिए इट स्टार्ट्स थिकनिंग, एंडोमेट्रियम लाइन क्या हो जाती है, थिक हो जाती है, थिक, हमने कल पढ़ा था ना, इट स्टार्ट्स गेटिंग थिक, वो थिक होने लगता है, ओके। सो ये क्या करता है, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है, विच हेल्प्स इन मेंटेनिंग द एंडोमेट्रियम लाइनिंग। आई विल यूज द अनदर डिफरेंट कलर टू मेक यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ, हाँ, एस्ट्रोजन का वर्क भी मैं बता देता हूं, एस्ट्रोजन का वर्क क्या होता है, चेंजेस इन दिस हार्मोन इज इंपॉर्टेंट, चेंजेस इन वॉइस, गर्ल्स के, फीमेल के वॉइस में चेंज इन वॉइस, वॉइस में चेंज आना, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होना, ब्रेस्ट डेवलपमेंट और ब्रेस्ट का ग्रोथ होना, ब्रेस्ट ग्रोथ और डेवलपमेंट, ओके, डेवलपमेंट, और कैसे, वाइडनिंग ऑफ द हिप्स, वाइडनिंग ऑफ हिप्स, और क्या हो सकता है, बॉडी हेयर्स में आना, फेशियल हेयर्स, फेशियल हेयर्स और बॉडी हेयर्स का ग्रोथ होना, और बॉडी हेयर्स का ग्रोथ होना, ओके। सो ऑल ऑफ दैट इज किसकी वजह से होता है, वो एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से होता है, याद रखिएगा, एस्ट्रोजन हार्मोन इज रिक्वायर्ड, नेसेसरी फॉर ऑल दीज ग्रोथ, एस्ट्रोजन, जिनके बॉडी में अगर ये ग्रोथ कम हो दिख रहे हैं, मतलब उनमें एस्ट्रोजन का हार्मोन का रिलीज कम हुआ है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करता है, व्हाट डज प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन डू, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का काम है कि एंडोमेट्रियम लाइन को मेंटेन करना, उसको और ज्यादा उसको थिक बनाना, दैट्स व्हाट प्रोजेस्टेरॉन डज। नाउ I would want to take some doubts here, if anyone has any doubts, and then we'll go ahead. So I assume you are clear till here, okay, the working, the function of progesterone and estrogen, only these two hormones, only these two hormones are released from the ovary, just remember, only these two hormones are released from the female reproductive part, or okay, only these two, rest all the hormones are, the rest, the FSH and LH are released from the pituitary gland, okay, and these four hormones control the इंटायर मेंस्ट्रुअल साइकिल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ
You have understood this. अभी क्या होगा? Now progesterone and estrogen is released. Now we come to the phase 2. Okay, this was, I will write it here. Let me just write it here once. This was phase 1. I would say phase 1. ठीक है. Now we'll go ahead towards phase 2. अब हम आते हैं phase 2 की तरफ. क्या होता है? अभी ये एवरी मंथ का काम है. वेदर द फर्टिलाइजेशन होता है या नहीं होता है, एवरी मंथ दिस हैपेंस. हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में द ओवम इज रिलीज्ड, the estrogen and progesterone are released. Okay, every month they are released, and every month this happens. Okay, now so from here प्रोजेस्ट्रॉन हम पढ़ रहे थे, प्रोजेस्ट्रॉन तक पहुंचे थे, एंड एस्ट्रोजन. सो अब यहां पे दो कंडीशंस आती हैं, दो कंडीशंस आते हैं. पहला है फर्टिलाइजेशन नो ऑकर्स. अगर फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन ऑकर्स, यहां पे फर्टिलाइजेशन होता है. एंड दूसरा कंडीशन होगा नो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है. ओके, वी हैव अंडरस्टूड. अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट फॉर्मेशन होगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होगा. लेट्स अंडरस्टैंड इट वन बाय वन. ओके, सो यहां पे समझते हैं फेज 2 में क्या होता है. इफ फर्टिलाइजेशन ऑकर्स, सो व्हाट विल हैपन. अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा यहाँ पे. आई विल यूज द डिफरेंट कलर हियर. व्हाट विल हैपन, कैन एनीवन टेल मी. जाइगोट, फर्टिलाइजेशन अगर होगा सो द जाइगोट विल इम्प्लांट. क्या होगा? इम्प्लांट इन यूटेराइन लाइनिंग. यूटेराइन लाइनिंग को और क्या बोलते हैं? कैन एनीवन टेल मी, व्हाट डू वी कॉल यूटेराइन लाइनिंग को? अनदर वर्ड फॉर यूटेराइन लाइनिंग, व्हाट डू वी यूज अनदर वर्ड फॉर यूटेराइन लाइनिंग? आई वुड वांट टू हियर दिस फ्रॉम एनीवन. वेरी गुड लक्ष्मी. एंडोमेट्रियम लाइन को ही यूटेराइन लाइन बोलेंगे. आई विल राइट इट हियर, अदरवाइज यू माइट गेट कंफ्यूज आल्सो, बिकॉज वी हैव अंडरस्टूड एंडोमेट्रियम लाइन परफेक्टली. एंडोमेट्रियम लाइन कोई यूट्राइन लाइन बोलेंगे. नाउ क्या होता है यहाँ पे? अभी ये हो गया. अनदर, व्हाट इज द सेकंड पॉइंट ऑफ इट? फर्टिलाइज्ड एग इज रिलीज्ड. फर्टिलाइज्ड एग इज रिलीज्ड. फर्टिलाइज्ड एग रिलीजेस. एग रिलीजेस. ओके, नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट पार्ट. वी हैव अंडरस्टूड कि जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन, उसके पहले जो इम्प्लांटेशन है, दैट हैपेंस अराउंड 7 to 8 days. एक वीक का कम से कम टाइम लगता है. बिफोर दैट यू कांट गेट टू नो वेदर द वुमेन इज प्रेग्नेंट और नॉट. ओके, सो द बॉडी, यहाँ पे यूट्रस रिलीजेस अनदर हार्मोन, अनदर हार्मोन कॉल्ड हार्मोन और कॉल्ड प्रेगनेंसी हार्मोन. याद रखिएगा, we call it pregnancy hormone. इसी से पता चलता है whether the woman is pregnant or not. Okay, pregnancy hormone called, इसका नाम बस अभी जान लीजिए, अभी ज्यादा मतलब नहीं जानना है. ह्यूमन HCG. We call it HCG. Let me write the full name here. HCG, human, I think chorionic गोनाडोट्रोपिन. ह्यूमन क्रोलोनिक गोनाडोट्रोपिन, ये हार्मोन रिलीज होता है यहाँ पे. एंड दिस इज द, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, इंडिकेशन ऑफ, अरे दिस गिव्स द इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी. इससे पता चलता है whether the woman is pregnant or not. This gives the indication of pregnancy. कैसे पता चलता है? Through urine. Someone has unmuted himself or herself. Ajit. Okay. Through urine और ब्लड सैंपल. देखा ना आपने, न्यूज ऐड आते हैं बहुत सारे, आते हैं जहां पे ब्लड सैंपल टेस्ट किए जाते हैं, एंड दे गेट टू नो वेदर द वुमेन इज प्रेग्नेंट और नॉट. सो हाउ डिड दे गेट टू नो? बिकॉज हार्मोन इज रिलीज, प्रेगनेंसी हार्मोन इज रिलीज, HCG, ह्यूमन क्रोनिक, आई थिंक क्रोलोनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन क्रोलोनिक गोनाडोट्रोपिन. ये हार्मोन रिलीज होता है कब? जब फर्टिलाइजेशन होता है, व्हेन द फर्टिलाइजेशन इज हैपनिंग. ओके, नाउ HCG signals the corpus luteum to release more progesterone. Very important line here. I will rub this part from here. मैं इसको अभी रब कर देते, जब सेकेंड फेज में आएंगे तब यहाँ पे करेंगे. यहाँ पे इसको पहले अब हम let's complete this only first.
यहां पे रखिए HCG का काम क्या है? दिस गिव्स सिग्नल्स, ध्यान से सुनिएगा, सिग्नल्स। कॉर्पस ल्यूटियम क्या था? जो फॉलिकल का रिमेनिंग पार्ट था, याद रखिए। एग रिलीज हो गया है, रिमेनिंग पार्ट जो बचा हुआ है, रिमेनिंग, आई विल राइट इट हियर, रिमेनिंग ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। बहुत अच्छा डायग्राम है बुक में, आपको समझ में आ जाएगा। ल्यूटियम, सॉरी इट्स ल्यूटियम। तो ये इस फॉर्म में आया था, इस फॉर्म में ऐसा सब बन जाता है, ठीक है, क्योंकि एग तो निकल चुका है इसका। एग तो जो ओवम है वो रिलीज हो चुका है, कॉर्पस ल्यूटियम का ओवम रिलीज हो चुका है। तो ये इस तरीके के एक फ्लावर की तरह दिखने लगता है, ठीक है। इट लुक्स लाइक अ फ्लावर, ओके, याद रखिएगा। तो कॉर्पस ल्यूटियम सिग्नल्स, ओके, दिस सिग्नल्स, यहां पे सिग्नल करता है किसको? द कॉर्पस ल्यूटियम, बिकॉज कॉर्पस ल्यूटियम क्या किया था? प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज किया था। यहां पे मैं फिर से लिख देता हूं, कॉर्पस ल्यूटियम रिलीजेस दी प्रोजेस्टेरॉन, यही तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन को रिलीज किया था। तो कॉर्पस ल्यूटियम को इन्होंने सिग्नल दिया टू रिलीज। अब कोई यहां पे मैं आई एम गोना आस्क यू वन क्वेश्चन, जस्ट बी रेडी, टू रिलीज मोर प्रोजेस्टेरॉन, टू रिलीज मोर प्रोजेस्टेरॉन, टू रिलीज more progesterone, so that, अब बताइए what is the reason why there is a need of more progesterone? Who will tell me why there is a need of more progesterone? Why? What is the need of more progesterone, release of more progesterone? Yes, let's hear from someone. This is amazing, guys, amazing. You have taken it completely right. Like endometrium development, progesterone develop the endometrium line for more or for the pregnancy. So I will write it here, so that uterine lining or endometrium lining, याद रखिएगा, endometrium lining can be, I will write it here, पहले मैं लिख देता हूं फिर समझाता हूं, can be maintained well enough, can be maintained well enough, can be maintained well enough, समझिएगा, जिससे कि वहां पे ज्यादा कुशनिंग हो पाए, ज्यादा थिक हो पाए। जितना ज्यादा थिक हो जाएगा उतना ही जो जाइगोट आएगा वहां पे इजिली एम्ब्रायो आएगा, embryo can easily implant without any problem, right, without any issues, right, वहां पे इजिली उसको कुशनिंग मिलेगी, उसको एक एक आप समझिए, आप पिलो लगा रहे हो, आप उसको पिलो का काम कर रहे हो, आप उसको एक पिलो दे रहे हैं, राइट, तो वहां पर ये होगा। एंड well enough further development, and there will be the further development development further development for 8 to 9 months, right, वहां पे अब क्या होगा? फर्दर डेवलपमेंट होगा 8 to 9 months, ओके, 8 to 9 months का फर्दर डेवलपमेंट होगा, राइट। नाउ वी आर डन हियर विद दिस पार्ट, ओनली फॉर दिस पार्ट। अभी हम सिर्फ कब की बात कर रहे हैं, हमने क्या समझा अभी? फर्टिलाइजेशन जब होगा तब ये प्रोसेस होगा। गाइस प्लीज, इधर 43 हो गया। धीराज, आई वुड रिमूव यू बच्चा, जानबूझ के दो बार कर रहे हो। ओके, नाउ डिड वी ऑल गेट इट? समझ में आ गया सभी को? कोई डाउट है तो लेट्स टेक इट हियर, अगर डाउट है तो, अदरवाइज विल गो अहेड। चलिए, लेट्स, आई विल जस्ट टेक द डाउट्स, I'm waiting if you have any doubt here. Okay guys, so just the full form of HCG, human chronic gonadotropin, clear? Now let's go ahead. So we understood what if fertilization occurs, अगर fertilization होता है तो वहां पे किस तरीके से प्रेगनेंसी पीरियड की तरफ बढ़ेंगे। Now we'll understand what if no fertilization happens. Okay, what if no fertilization happens? So just give me a second for that, I will add a new slide blank. Okay, so let's go ahead and understand when no fertilization occurs. Okay, when there is no fertilization, right? Yeah, no one has doubt now. So when there is no fertilization,
नो इन द केस ऑफ नो फर्टिलाइजेशन, नो फर्टिलाइजेशन, अब फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है तो HCG नहीं होगा, अनदर हार्मोन नहीं आएगा, दैट वोंट सिग्नल कॉर्पस ल्यूटियम टू रिलीज मोर व्हाट, प्रोजेस्टेरॉन, तो कुशनिंग नहीं होगी. व्हाट विल हैपन हियर, द कॉर्पस ल्यूटियम, याद रखिए ये वर्ड ध्यान दीजिएगा, कॉर्पस ल्यूटियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस टेल्स यू द जनरल नॉलेज ऑफ प्रेगनेंसी दैट इट टेक्स डेज, ये एक दिन का नहीं होता है, ये पूरे मंथ का साइकिल होता है. ओके, सो कॉर्पस ल्यूटियम वेट फॉर 10 days, अराउंड 10 days और सो, और ज्यादा भी, इवन इफ, मैं लिख देता हूं पहले फिर एक्सप्लेन करता हूं, इवन इफ इन दैट पीरियड, even if in that period, okay, even if that period fertilization has not occurred along, अगर मतलब कि फर्टिलाइजेशन अगर एग के साथ नहीं हुआ है तो कार्पस ल्यूटियम क्या करता है, सारे एग को, एग जो है और अनवांटेड सब्सटेंसेस है, जैसे यूट्रस में जो अनवांटेड सब्सटेंस कौन से हैं, एंडोमेट्रियम लाइन जो बन गया था वहां पे, राइट, वहां पे जो भी अनवांटेड सब्सटेंसेस सभी को थ्रू द वजाइना एग्जिट कर देता है, थ्रू द वजाइना एग्जिट कर देता है. लेट मी राइट इट फर्स्ट, देन आई विल एक्सप्लेन इट मोर क्लियरली. ओके, इवन इन दैट पीरियड द fertilization does not or occur, has not occurred, I would write has not occurred along with the unfertilized egg. Corpus luteum, the corpus luteum, corpus luteum releases, I would say releases, okay, exit, releases the other unwanted substances present in the uterus, exit करा देता है, कहां से, exit the female reproductive, then I'll explain it perfectly, female reproductive tract, जो duct है वहां पे, in the form of menstrual flow, in the form of menstrual flow, और we call it मेंसेस. याद रखिएगा, मेंसेस भी कहते हैं मेंस्ट्रुएशन को. और मेंस्ट्रुअल फ्लो क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो क्या होता है, मिक्स ऑफ, लेट मी राइट इट हियर, मिक्स ऑफ आपका म्यूकस, हमने पढ़ा था ना, म्यूकस टिश्यू याद कीजिए, प्लस ब्लड प्लस अदर मटेरियल में क्या आ जाएगा, एंडोमेट्रियम लाइन वगैरह आ जाएंगे, ठीक है, मटेरियल. इट रिलीजेस ऑल ऑफ दीज in order to prepare for the next month. फिर नेक्स्ट मंथ में फिर से वही साइकिल रिपीट होगा. आप समझते हैं इसको, बहुत डिटेल अच्छे से समझते, समझिए कि जब फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है तो अगेन आपका कॉर्पस ल्यूटियम स्टार्ट्स श्रिंकिंग, वो धीरे धीरे क्या होता है, श्रिंक होना स्टार्ट होता है. कॉर्पस ल्यूटियम, यहाँ पे है कॉर्पस ल्यूटियम, मैं अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी ऐड करते चलेंगे यहाँ पे. Corpus luteum, I will write it here. Okay, I'm writing it here. Once again, color has not been changed. Okay, I'm just writing this point here. The corpus luteum starts shrinking, छोटा होने लगता है, ठीक है, खत्म होने लगता है, बेसिकली डिजनरेट हो जाएगा. आपने पढ़ा ना, shrinking. Once again, starts shrinking, starts shrinking.
और ये बन जाता है, अब जब श्रिंक होगा तो कॉर्पस एब्लिकन बन जाता है, जो रिलीज होने वाला, जो बाहर निकल जाएगा, कॉर्पस एल्बिकेंस बन जाता है, कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कॉर्पस एल्बिकेंस में बन जाता है, ठीक है। तो इट स्टार्ट श्रिंकिंग, और ये साथ ही साथ जितने भी अनवांटेड सब्सटेंसेस है, जो म्यूकस टिश्यू जो वहां पे बन रहा था, म्यूकस टिश्यू जो बन रहा था, जो आपके किसमें था, म्यूकस टिश्यू होता है आपके फॉलिकल, जो फुली ग्रोन फॉलिकल था, उसमें जो ओवम था, उसके साथ साथ जो अराउंड में उसके म्यूकस टिश्यू भरा होता है। मैं अगर डायग्राम बनाऊं तो ऐसा दिखेगा वो, ये आपका फॉलिकल, फॉलिकल हो गया, ये आपका फॉलिकल, फुली ग्रोन फॉलिकल समझिए इसको, जो बैग है, बैग सैक जिसको बोलते हैं ना, सैक, इसमें हो गया आपका, आपका एक ओवम हो गया समझ लीजिए, और इसके आसपास जो टिश्यू होगा, इसके आसपास जो लेयर्स होंगी, जो टिश्यू भरा होगा, टिश्यू, दैट इज योर, आपका कौन सा टिश्यू है, म्यूकस टिश्यू होगा, म्यूकस टिश्यू होता है उसमें, म्यूकस टिश्यू, म्यूकस टिश्यू, ठीक है, समझिएगा। नाउ म्यूकस टिश्यू, तो यहाँ पे ये क्या होता है, दिस स्टार्ट्स, ये रिलीज हो जाता है ओवरी के साथ, दिस रिलीजेस विद, सॉरी, कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज कर देता है इनको ब्लड के साथ, म्यूकस टिश्यू के साथ, और अदर मटेरियल, मतलब जहां पे जो इनका क्या था, एंड्रोमेट्रियम लाइनिंग था, वो भी रिलीज हो जाता है, वो पूरा ब्रेक होके पूरा वापस से रिलीज हो जाता है, एंड दिस इज रिलीज्ड इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट मंथ ऑफ द साइकिल, in order to prepare for the next month, in order to prepare for the next month, and this is the entire process। अभी हमारा एक डायग्राम बचा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूं पहले से ही, ये हमें, ये जो बुक का हमारा डायग्राम है, अब हम इसको एक बार समराइज कर लेंगे लास्ट में, ठीक है, वी विल समराइज दिस डायग्राम and this also, so just be with me like for 10-15 minutes, okay। Now I will take the doubts, if you have any doubts still here, okay, let's take some doubts, if you have any doubts still here, perspective as well, okay, so let's summarize, we have understood this, okay, I'll take like 1 or 2 minutes, very quickly we'll summarize everything। चलिए, so सबसे पहले हमने बात किया every month, okay, every month this process starts and hypothalamus gives the signal to the pituitary gland, pituitary gland releases the FSH and LH hormones, follicle stimulating hormone and luteinizing hormone, हमने इनको पहले ही देख लिया था, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइज। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम क्या है, वो फॉलिकल को डेवलप करने में हेल्प करता है, दैट हेल्प्स इन डेवलपिंग द फॉलिकल। फॉलिकल क्या है, एक बैग की तरह है, इट इज अ सैक, ओके, इन ओवरीज कंटेन्स द एग एंड द अदर टिश्यू पार्ट दैट इज कॉल्ड म्यूकस, जो बाकी का टिश्यू पार्ट है उसमें म्यूकस होता है, जो एग के साथ रहता है, जो उसको डेवलप करने में हेल्प करता है, राइट। और फिर एक एग वहां से रिलीज हो जाता है, मैच्योर कर रहा होता है, बेसिकली ऐसे समझ लीजिए, मैच्योरिटी पीरियड में आपका फॉलिकल का हेल्प करता है, एग को मैच्योर करने में हेल्प करता है। नाउ FSH signals the ovary releases the third hormone called as estrogen, एस्ट्रोजन जो फॉलिकल को अगेन डेवलप किया पूरा, और गिव्स द फॉलिकल को रप्चर होने में हेल्प करता है, रप्चर और ब्रेक करने में हेल्प करता है, मतलब बेसिकली उसको सिग्नल देता है कि आप रप्चर हो जाइए और एक ओवम को रिलीज कर दीजिए, टाइम आ गया है जस्ट टू रिलीज द ओवम, ओके। ओवम यहां से रिलीज होता है, और जो बाकी का बचा पार्ट रह जाता है, कॉर्पस, जो बाकी का फॉलिकल का रिमेनिंग पार्ट ऑफ फॉलिकल, रिमेनिंग पार्ट ऑफ फॉलिकल, रिमेनिंग पार्ट ऑफ फॉलिकल called as corpus luteum, sorry this is M here, corpus luteum, that corpus luteum कहलाता है, वो एक श्रिंक होके इस फॉर्म में आ जाता है, ऐसे फ्लावर की तरह दिखने लगता है, ओके, इट लुक्स लाइक अ फ्लावर ऐसा। तो corpus luteum releases the progesterone and moderate level of estrogen, कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन को भी रिलीज करता है और एस्ट्रोजन को रिलीज करता है। प्रोजेस्टेरॉन हमारा फोर्थ हार्मोन है। प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द एंडोमेट्रियम लाइनिंग और यूट्रिन लाइनिंग, ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग को मेंटेन करता है, कुशनिंग प्रोवाइड करता है, उसको थिक बना देता है, थिक, जिससे एम्ब्रियो बहुत अच्छी तरीके से वहां पे इम्प्लांट हो सके बिना किसी प्रॉब्लम के, इश्यू के, ठीक है, बहुत अच्छी तरह से आके वहां पे इम्प्लांट हो जाए आराम से, उसको इनफ कुशनिंग वहां पे सॉफ्टनेस बेसिकली, कुशनिंग इज नथिंग बट द सॉफ्टनेस, याद रखिएगा, सॉफ्टनेस, ओके, सॉफ्टनेस प्रोवाइड करता है, तो वहां पे उसको सॉफ्टनेस मिलती है। नाउ एस्ट्रोजन का काम क्या है,
एस्ट्रोजन बॉडी ग्रोथ में ही हेल्प करता है, विमेन्स के बॉडी ग्रोथ में हेल्प करता है, जैसे फॉर एग्जांपल चेंज इन वॉइस, ओके, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ब्रेस्ट ग्रोथ, वाइडनिंग ऑफ हिप्स, फॉर्मेशन ऑफ बॉडी हेयर्स, फेशियल हेयर्स, और जेनिटल पार्ट्स में भी हेयर्स, ओके। सो दिस इज दैट इज ऑल डन विद द एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो हमारा हार्मोन है उससे हेल्प होगा, ठीक है। आर वी क्लियर टिल हियर? क्विकली गिव मी अ थम्स अप इफ यू आर क्लियर टिल हियर। This revision, like summarizing, is if the summarizing is clear for everyone? Okay, perfectly. Thank you so much. Thank you, Pooja. Chaliye. Now we come to the phase 2. And where two hormones are released called as corpus luteum. phase 2 में corpus luteum, जो बचा हुआ corpus luteum था, जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फॉलिकल था, ओके, वो रिलीज करता है अब यहाँ पे मोर हार्मोन्स कॉल्ड एज आपका प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। वन सेकेंड, हाँ, इट रिलीजेस मोर हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, याद रखिएगा। Lakshmi, luteinizing hormone help with the FSH and LH, both are released from the pituitary gland and they both help in sexual development, okay। वहां पे मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए ही रिलीज होते हैं, जो ओवरी को सिग्नल देते हैं कि आप फॉलिकल से, मतलब फॉलिकल जो ग्रो हो चुका है, अगर ग्रो हो चुका है तो उससे आप रिलीज करोगे वहां पे। ट्रिगर्स मतलब they helps in triggering the release of an egg from the ovary. They both are the together only, they both are together, okay। Now let's go ahead. So estrogen and progesterone. Now here we come to the two phases. अभी corpus luteum पूरा ये regular process है, this happens. Pradum, I'm loud only, बच्चा. It must be a network issue from your side. Am I not loud? I think I'm loud for everyone, okay। So प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन अब यहाँ पे बन गए। दिस इज रेगुलर प्रोसेस फॉर एवरी मंथ। हर मंथ में ये सेम प्रोसेस रहेगा, वेदर द फर्टिलाइजेशन हैपेंस और नॉट, ओके। इतना कॉमन है, इतना होगा ही होगा, ठीक है। नाउ इफ द फर्टिलाइजेशन हैपेंस, फेज 2 में इफ द फर्टिलाइजेशन हैपेंस, तो क्या होगा? जाइगोट विल इम्प्लांट इन यूट्रिन लाइनिंग और एंडोमेट्रियम लाइनिंग, फर्टिलाइज्ड एग विल रिलीज, ओके, अनदर हार्मोन कॉल्ड प्रेगनेंसी हार्मोन कॉल्ड एज HCG, human chronic gonadotropin hormone will release, that will give signal to the corpus luteum to release more progesterone, so that uterine lining और endometrium lining can be maintained well enough, मतलब और ज्यादा थिक हो सके और ज्यादा कुशनिंग प्रोवाइड हो सके, बिकॉज अब वहां पे जाइगोट एम्ब्रायो आएगा और वहां पे फर्दर डेवलपमेंट होगा फॉर द रेस्ट ऑफ 8 to 9 months, right? For the further things happen, and this is also indication of pregnancy. Again, I told you yesterday, fertilization is not the indication of pregnancy. Embryo implantation is the indication of pregnancy. जब embryo implant होता है, that is the indication of pregnancy, okay? तब पता चलता है कि whether the woman is pregnant or not, and that is done with the help of HCG, जो हार्मोन बताएगा, इंडिकेट करेगा थ्रू द ब्लड और यूरिन सैंपल से पता चल जाएगा कि whether the woman is pregnant or not, whether the pregnancy has happened or not, okay? क्लियर टिल हियर? सभी को क्लियर हो गया यहाँ तक? अभी कुछ डाउट है यहाँ पे? डू वी हैव एनी डाउट हियर? क्विकली let me see some thumbs up or yes or no, anything doubts, anything as such? No doubt. Lakshmi saying no doubt, perfectly. Nidhi, you asked for the summarizing. Is this clearing for clear for you? Okay, perfect. Let's go ahead. Now this was the case of fertilization. अब यहाँ पे fertilization हो गया है और further development होगा. Now in case of there is no fertilization, अगर कोई fertilization नहीं होता है तो वहां पे क्या होता है? कॉर्पस ल्यूटियम वेट्स फॉर 10 days. ऐसा नहीं होता कि एक ही दिन में हो जाएगा, ठीक है? इट वेट्स फॉर, मतलब कि फर्टिलाइजेशन तो सिर्फ 24 आवर्स में होता है, बट कॉर्पस ल्यूटियम बिफोर it releases the unwanted substances, it waits for 10 days for the
fertilization to happen. It waits for the fertilization to happen, and in that period अगर fertilization नहीं होता है, then ये unfertilized egg और endometrium lining, म्यूकस जो टिश्यू था, जो वहां पे यहाँ पे बेसिकली कॉर्पस ल्यूटियम श्रिंक होने लगता है और कॉर्पस एब्लिकेंस में कन्वर्ट हो जाता है, बहुत छोटा होके श्रिंक होके छोटे से फॉर्म में आ जाता है, जो रिलीज हो जाता है थ्रू द वजाइना एंड थ्रू द ब्लीडिंग, वी कॉल इट ब्लीडिंग, और ब्लड से होते हुए वो रिलीज होता है, पूरा का पूरा आपका वजाइना से रिलीज होता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल फ्लो. वी कॉल it menstrual flow. Okay, we call it menstrual flow बोलते हैं हम इसे, menstrual flow, जो रिलीज हो जाता है पूरा यहाँ पे रिलीज कर देता है बाकी सारे अनवांटेड. और इस तरीके से menstrual cycle happens every month. This menstrual cycle happens every month. और अब हम आते हैं very important part. I will take like 5-10 more minutes or not more than that. Just quickly give me the hint whether you have a clear understanding till here or not. Just quickly give me the hint whether you have a clear understanding or not. Okay. I'm seeing Nidhi saying I didn't understand fully because I joined late. Okay. Nidhi, you can watch the recording again. I will share this on Google Classroom. You can watch it again. Thank you everyone who have doubt, or you can read the textbook also. So that will help. Or you can ask me some other time. That is okay. You can ask me the doubts if you have joined the late. It's okay. चलिए अब आगे पढ़ते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में. ये हमारा टेक्स्ट बुक का डायग्राम है. आई विल क्विकली टेक 2 minutes टू एक्सप्लेन दिस एंड देन द फर्दर लाइक 2-3 minutes टू एक्सप्लेन दैट डायग्राम. हाइपोथैलेमस गिव्स द सिग्नल टू पिट्यूटरी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. यहां से आपका रिलीज होता है क्या, फॉलिकल. यहां पे देख लीजिए फॉलिकुलर फेज बोलते हैं इसको. वी कॉल इट फॉलिकुलर फेज. एक होता है ओवेरियन साइकिल, एक होता है यूट्राइन मेंस्ट्रुअल साइकिल. जो यूट्रीन में जो आपके एंडोमेट्रियम लाइन में चेंज मिलता है, एक होता है जो आपके एग में चेंज मिलता है, जो जबकि आपके कहां पे फेलोपियन ट्यूब में हो रहा होता है. ठीक है, सॉरी इनसाइड द ओवरी हो रहा होता है. एक और चीज, एक और वर्ड आता है ओव्यूलेशन. अनदर वर्ड यू मस्ट बी हियरिंग, ओव्यूलेशन. ओव्यूलेशन इज नथिंग बट, याद रखिएगा, ओव्यूलेशन कुछ नहीं है, सिंपल सा एक टर्म है जिसमें होता है रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी. रिलीज ऑफ, अच्छा मैं आगे बताएंगे इसको, रिलीज ऑफ एग फ्रॉम दी ओवरी किस समय में होता है, ये भी आई विल एक्सप्लेन दैट एज वेल. फ्रॉम दी ओवरी मैं आपको एक्सप्लेन कर देंगे, अभी रुक जाइए, इसको आगे वाले डायग्राम में एक्सप्लेन करते हैं. तो यहाँ पे देख सकते हो प्राइमरी फॉलिकल, फुली ग्रोन फॉलिकल यहाँ पे आता है, जिसको आप ग्राफीन फॉलिकल बोलते हैं. फुली ग्रोन फॉलिकल, मैच्योर लिखा हो ना, फुली ग्रोन फॉलिकल, ये रिलीज करता है. यहाँ से एस्ट्रोजन से रिलीज होता है, यहाँ पे एस्ट्रोजन आता है, ओवरी से एस्ट्रोजन बनता है, राइट. और ये ओव्यूलेशन होता है. यहाँ पे ओव्यूलेशन मतलब रिलीज ऑफ द एग, यहाँ पे देख सकते हो. और जो रिमेनिंग पार्ट है, ये जो रिमेनिंग पार्ट है ना, ये जो रिमेनिंग पार्ट है, दिस कन्वर्ट्स इन द कॉर्पस ल्यूटियम. ये कन्वर्ट किस में होता है, कॉर्पस ल्यूटियम से कन्वर्ट होता है. याद रखिए ये सारा काम कौन कंट्रोल कर रहा है, आपका एलएच कंट्रोल कर रहा है. किसी ने पूछा था फंक्शन क्या है, ये देखिए एलएच कंट्रोल कर रहा है. LH is controlling all of this. देख लीजिए, LH is controlling all of this. LH and FCH both are together controlling all of this process. Estrogen and progesterone are responsible for the things happening inside the uterus. Okay, for the things happening inside the uterus. I hope this is getting clear now. और जब corpus luteum जब fertilization नहीं होगा तो it will convert into corpus albicans, shrink हो जाएगा. यहाँ पे shrink हो जाएगा, यहाँ पे shrink होके कॉर्पस एब्लिकन में कन्वर्ट हो जाएगा. एंड नाउ विल अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस. मेंस्ट्रुअल फेज, प्री ओवुलेटरी फेज, ओवुलेटरी, और ये समझेंगे. इसको थोड़ा सा हम दूसरे डायग्राम में समझेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा. इस तरीके कैसा चेंज आता है, ये कैसा चेंज आता है, ये जो चेंज दिख रहा है ना आपको, ये कैसे आता है, विल अंडरस्टैंड दिस. ओके, हमने ऑलरेडी समझा. ये देखो थिक हो रहा है ना यहाँ पे, ये देखिए ये जो थिक हो रहा है, ये जो आपका देखिए इसका साइज बढ़ गया है, क्योंकि ये जब और ज्यादा प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है ना, यहाँ पे when more progesterone is released, it gives a signal to the endometrial line to become thicker, to become more soft and to provide more cushioning to the embryo if the fertilization happens, right? That happens here. Now I hope this is clear. This is given in the textbook or the textbook as well. I will explain this
clear further with this example now. I will take like 5-6 more minutes. समझिए, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा। पहला होता है हमारा फेज मेंस्ट्रुअल फेज, वी कॉल इट मेंस्ट्रुअल फेज, सबसे पहला। सेकेंड होता है फॉलिकुलर फेज, एंड थर्ड होता है ओव्यूलेशन फेज, एंड द लास्ट इज ल्यूटियल फेज। ल्यूटिनम, कॉर्पस ल्यूटियम वाला, याद रखिए, कॉर्पस ल्यूटियम वाला। ओके, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। ओके, जस्ट and this happens for 1 to 5 days, 5 days, sometimes 7 days also, किन्हीं में 7 days. This happens for 9 to 10 days. मैं पहले लिख देता हूं कुछ चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट. This happens for only 1 day, याद रखिएगा, 1 day only, for 1 day only, and this happens for 12 to 14 days. आप समझते हैं, चलिए now, तो this entire cycle is for 28 to 30 days. 28 to 30 days. This entire process is for 28 to 30 days. आप समझिए, सबसे मेंस्ट्रुअल साइकिल का सबसे फेज होता है ये मेंस्ट्रुअल फेज, जिसमें जहां पे आपका मतलब आपका क्लीनिंग हो रही होती है. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लीनिंग फेज. मतलब कि जो पिछले महीने का मेंस्ट्रुएशन जो ब्लीडिंग हुआ था, बेसिकली समझ लीजिए मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ था, उसमें जो क्लीनिंग होती है तो वो तैयार करता, हमने पढ़ा ना, व्हेन देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, when there is no fertilization, it prepares it releases all the unwanted substances through the vagina and prepares for, in order to prepare for the next cycle, so next cycle start होता है हमेशा menstrual phase से ही, जहां पे क्या होगी, पहले cleaning होगी. okay, cleaning phase, this is also known as cleaning, and this involves bleeding. This involves bleeding, right? And this is very severe. Sometime in some women, this also has PMS, pre-menstruation syndrome symptoms. Pre-menstruation symptoms, किन्हीं में पूरी बॉडी में पेन होता है, किन्हीं में बहुत सारा मतलब सीवर पेन होता है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, किन्हीं some for some women only, not for all. okay, this happens in some only, like 20 to 30% women में ऐसा होता है PMS का. Now, जैसे ही क्लीनिंग हो जाती है, ब्लीडिंग हैपेंस, नाउ इट स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट मंथ, एंड दैट देयर इट कम्स द फॉलिकल फेज, जहां पे जो पिट्यूटरी ग्लैंड से LSH और LH रिलीज होते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और FSH और LH रिलीज होते हैं, जो कि ओवरी को सिग्नल देते हैं कि आप यहाँ पे फॉलिकल डेवलप करना स्टार्ट कर दो. और फिर वहां पे एस्ट्रोजन रिलीज हो जाता है, जो कि सिग्नल देगा कि अब एग को रिलीज कर दीजिए, राइट? तो जब एग रिलीज हो, तो फॉलिकल फेज में सिर्फ इतना होता है. अब आता है ओव्यूलेशन फेज. ओव्यूलेशन, जैसे मैंने आपको अभी बताया, ओव्यूलेशन फेज सिर्फ 1 दिन का ही होता है, फॉर 24 आवर्स ओनली. इस दिन क्या होता है, एग इज रिलीज्ड and progesterone is also released. याद कीजिए, सॉरी, egg I should write egg, और and progesterone यहाँ पे रिलीज होता है. progesterone याद कीजिए, progesterone रिलीज होता है, that gives the thickening to the endometrium, that gives signal to the thickening of endometrium. याद कीजिए, समझिए, अगर fertilization is not happened in 24 hours, then again women will not get pregnant. okay, but this will remain for नेक्स्ट ल्यूटियल फेज विल रिमेन. ये पूरा खत्म नहीं होता, ये 12 टू बताया था 10 डेज के लिए वेट करता है फर्टिलाइजेशन होने के लिए. ओके, बट ये 24 आवर्स के अंदर ही एग का फर्टिलाइजेशन होना चाहिए. अगर एग का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, यहाँ पे अगर एग का फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम वाला फेज आ जाता है. मोर प्रोजेस्टेरॉन विल बी रिलीज्ड, राइट? मोर प्रोजेस्टेरॉन विल रिलीज और मोर थिकनिंग विल प्रोड्यूस. नाउ अगर fertilization नहीं हुआ, if the fertilization has not occurred, then this egg will come to the menstrual cycle, down की तरफ आएगा, and other corpus luteum will, this luteum phase is nothing but the corpus luteum phase. Corpus luteum, जहां पे it starts shrinking, and everything is released through the vagina. okay, everything is released through the vagina, and again this menstrual cycle comes, जहां पे फिर से क्लीनिंग होगी और फिर से वापस से पूरा ये फेज चलता रहता है.
ओव्यूलेशन पीरियड हैपेंस मोस्टली ऑन 14 डेज। अगर आपका सपोज कीजिए थर्ड थर्ड ऑफ फर्स्ट एक मंथ के 3 तारीख को मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ आपका, तो उसके 14 डेज के बाद ही ओव्यूलेशन फेज आएगा जहां पे एग रिलीज होगा। आफ्टर 14 डेज ओनली द एग विल रिलीज। ओके, 14 डेज पे ही ओव्यूलेशन पीरियड होता है, मिड होता है, ठीक है। जनरली हम इसको मिड लेते हैं, ठीक है, मिड डेज पे होता है। नाउ सो दिस is the process of menstrual cycle here. This is the entire process of menstrual cycle. अगर आप कोई डाउट है, you can ask me. I have covered everything here. Okay, याद रखिएगा, menstrual cycle जब होता है, जब रिलीज होता है तो सीवर पेन होता है, सीवर वीकनेस फील होती है, हैवी ब्लीडिंग होती है, 150 ml तक ब्लड रिलीज होता है, 150 ml तक ब्लड रिलीज हो जाता है, इतना तक ब्लड जाता है। एंड देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शंस टू ड्यूरिंग ओवरऑल पीरियड। कई बार इन्फेक्शन होने के भी चांस रहते हैं, इसलिए पैडमैन मूवी देखी ना, जहां पे बोलते हैं कि यूज द पैड नॉट द क्लॉथ, डू नॉट यूज द क्लॉथ, बिकॉज वहां पे क्या होता है, क्लॉथ यूज करने से इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो यू द women's need to use the pad, okay, and they also need to rest during that time. They also need to rest, and they also need to have personal special, or you can say special hygiene। खाना अच्छा खाना होता है उस टाइम पे, जिससे वो न्यूट्रिएंट वाइज और फिजिकल वाइज वो हेल्दी रह सके, ठीक है। Now you can ask me any doubt if there is anything, and we are done. Amazing.